جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آیا اس ملک میں، زلزلہ، سیلاب یا کوئی بھی ملک میں ناگہانی صورتحال ہوئی ہے، تو آرٹسٹوں نے بڑھ چڑھ کے گورنمنٹ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. یہ نہیں کہ ہم گورنمنٹ کی عزت نہیں کرتے، ہم ریاست کی عزت کرتے ہیں اور کروانا بھی جانتے ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر عید پہ گورنمنٹ پنجاب نے ہمیں تھیٹر کھولنے کی دعوت نہ دی اور پبلک ٹرانسپورٹ کھل گئی، ریلوے کھل گیا، تو ہم اپنے تھیٹر زبردستی کھولیں گے. اور اگر ضلعی انتظامیہ نے کسی بھی قسم کی رکاوٹ کرنے کی کوشش کی تو تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ آرٹسٹ خود گرفتاریاں دیں گے. چاہے نواز شریف صاحب کی ہو، چاہے بے نظیر کی ہو، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، خدا کی قسم چاہے کابلی کی ہو، چاہے اقوام متحدہ کوئی بھی ایسی پارٹی ہو، کسی نے بھی آج تک فنکاروں کے لیے کچھ بھی نہیں سوچا. ساڈا شیخ سی ترجیح اور آدمی ہے، بڑی مشکل ہے. بھابی نے بڑا ماسک پا کے بھیجا کہ بیٹا بھوگنا ہے. اس طرح مجھے نہیں چاہیے. ہم خوددار لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں کیا. میں چاہوں گا کہ ستی سرور صاحب کی جگہ اگر یہی ہم شکریہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے پیش کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور وہ تب ہی ہوگا کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب ہماری طرف صرف ایک نظر کرم کرتے ہیں اور ہمارے مطالبات کو اپنا دکھ درد محسوس کرتے ہوئے فنکاروں کی اس بندش کو بھولیں. یہ ریکویسٹوں والی گورنمنٹ ہے ہی نہیں. یہ گورنمنٹ سن لے. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے شیخ رشید صاحب کی ایک پریس کانفرنس سنی ہے. ایک میں 5000 بندہ بیٹھتا ہے، اگر اسے ایس او پیز کے مطابق بھی دیتے ہیں تو 2500 بندہ بیٹھتا ہے. اور ہمارے تھیٹر میں تو صرف 500-600 بندہ بیٹھتا ہے. ہمارا تھیٹر جو ہے وہ ایزیلی کھل سکتا ہے. یہ نہیں کہ میرے تے کرایہ چلے ہے کہ 4 بچے نہیں میرے تے تانوں تاڈے بچیاں دا واسطہ ہے. حکومت صاحب عمران خان صاحب تھیٹر کھول کے تانوں تاڈے بچیاں دا واسطہ. سچی مچی سانو صرف ساڈا کاروبار کھول دیں، اسی ڈرامہ کریے تے اپنے بچیاں دا رزق لیں. بہت شکریہ. تو جب تھیٹر پہ شو ہوتا ہے ہم تک پیسے بعد میں پہنچتے ہیں، پہلے گورنمنٹ لے جاتی ہے ریونیو کی شکل میں، ہم ٹیکس دیتے ہیں اس کام میں. تو یہ واحد کام ہے جو ہم کرنے سے پہلے دے دیتے ہیں آپ کو. تو مہربانی کریں کوئی حکمت عملی بنا کر تھیٹر کو کھولیں. یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہر بار گورنمنٹ کا ساتھ دیا، اب گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے. ڈرامے کھلنے چاہیے تاکہ ہم اپنا کام کریں، جس طرح آپ کہیں گے ویسے کام کریں گے. اور یہ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ فنکار ایسے ہیں جو سروائیو کر لیں گے 1 2 3 سال کے لیے، جو بیٹھے ہیں کچھ اور کچھ تو بالکل ان کا رزق بند ہو گیا ہے، پریشان ہے. وہ ہم بتا نہیں سکتے ان کی باتیں کو وہ کیا کہہ رہے ہیں. مگر انہوں نے جو آج کام کیا ہے یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا، سب کو اکٹھا کیا کہ ہماری بات ستی سرور صاحب کی ہو رہی تھی کہ لاہور میں تو ستی سرور صاحب ہیں، ملتان میں تو نہیں ہے نا، سعد آباد میں تو نہیں ہے نا، باقی شہروں میں تو نہیں ہے نا، باقی فنکار کیا کیا ہے. تو بڑی بات ہے کہ ستی سرور صاحب بیٹھے تو خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں. تو ستی صاحب جتنا ان کا کام تھا اس سے بڑھ کر وہ اپنی پاؤں سے اپنی بساط سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں. تو 3-4 مہینے سے تھیٹر بند ہے. تو اور باب اختیار سے ریکویسٹ ہے کہ فنکار آپ سے ہیلپ کی امید کر رہے تھے، آپ نے ابھی تک وہ کام بھی نہیں کیا. اگر آپ تھیٹر کھول دیتے ہیں، ہم تھیٹر احتیاطی تدابیر کے ساتھ کھولتے ہیں، اسی طرح ہم کام کریں گے. جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سینیٹائزر، ماسک اور آپ بھی یہ سب استعمال کیجیے، اور اس طرح اگر ہم تھیٹر کھولتے ہیں تو یقین کیجیے گا کہ ہم گورنمنٹ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں. یہ ہمارا وعدہ ہے کہ اگر آپ تھیٹر کھول دیتے ہیں تو ہم نہ گورنمنٹ سے کہیں گے کہ ہمارے گھر راشن پہنچائیں، نہ ہم کہیں گے کہ ہماری کوئی ہیلپ کیجیے. خدا فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، ان کی زندگیاں بچانے کے لیے پلیز نہ آپ راشن دیں، نہ کوئی چیک دیں، صرف تھیٹر کھول دیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر کام اپنا کر سکیں اور گورنمنٹ سے نہ ہم اس چیز کو رکھتے ہیں. تھینک یو جی. سیوٹ کروں گا ستی سرور صاحب کو، اور یہ ہمارا پروگرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے شفیق جو ہے پروڈیوسر دی ہیں جنہوں نے پورے اس دور میں، اس کرائسس کے دور میں فنکاروں کا ساتھ دیا، جو ان کے پاس باؤنڈ تھے اور جو باؤنڈ نہیں بھی تھے ان کا بھی ساتھ دیا.
कैसा सुनारा साहब को और नसीम इक्की साहब को जिन्होंने सरकारों का साथ दिया। उसमें हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट की जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे। यहाँ पर बाहर सैनिटाइजर मशीन जो वो लग जाएगी, मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा और दूसरा सोशल डिस्टेंस जो है उसको भी बरकरार रखा जाएगा। यहाँ से लेकर के हॉल तक उसी अपना कानून को फॉलो किया जाएगा जो गवर्नमेंट हमें बताएगी, जो गवर्नमेंट ने हमें बताया। इस सेट के ऊपर भी अगर ड्रामा हो रहा होगा तो 2 से 3 से ज़्यादा लोग सेट के ऊपर नहीं होंगे, सोशल डिस्टेंस होगा, एक दूसरे से दूर रहकर वो बात करेंगे और कोई एक दूसरे के साथ मतलब हाथ भी टच नहीं होगा। और इसी तरह जिस तरह आप हॉल में बैठे हुए ठीक इसी तरह ये सोफे हमारे इसी तरह चेयरिंग होगी सारी, वो इसी तरह डिस्टेंस होगा। काफिले पाकिस्तान के अंडर आते हैं, थोड़ा सा मोबाइल नीचे कर लें, उनको भी सारी सिचुएशन आसानी नजर आ रही है। मैं पिछले 15 साल से हॉस्पिटल्स के साथ काम करता हूँ, क्योंकि हम ब्लड कैंप्स लगाते हैं थैलीसीमिया और हेमीफिलिया के बच्चों के लिए। लाहौर के अंदर जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनकी तादाद अंदाजन 5760 है जहाँ हमारे कैंप लगते हैं, ब्लड कैंप। मैं चूँकि उन हॉस्पिटलों में अक्सर आता जाता रहता हूँ, मुझे इस बात का एहसास है कि हर हॉस्पिटल में रोज़ाना 3 से 5 बंदे मरते हैं, जिनकी डेथ होती है रोज़ाना आम जिंदगी में। इस कोरोना से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अगर 5000 को 5 से अगर दी जाए तो 25,000 बंदा तो वैसे ही रोज लाहौर में अस्पताल में बनता है। पहले गिने नहीं जाते, अब गिन के बता दिए जाते हैं, इसलिए पैनिक है। अभी आप ऑरेंज ट्रेन जो है इसके पास स्टेशन के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, वहाँ जितनी ट्रैफिक रुकती है 400-450 के करीब गाड़ियाँ, हर गाड़ी में अगर 2 बंदे हों तो 800 बंदा तो रुकता है और 250-300 मोटर बाइक होते हैं। इसके अलावा ये मजाक चौक के ऊपर पाइप डल रहे हैं, वहाँ रुकते हैं। जितनी भी पुलिस की चेक पोस्ट है उसके ऊपर भी कम से कम 30 से 35 गाड़ियाँ रुकती हैं। तो क्या हमारे थिएटर में इससे ज़्यादा लोग आते हैं? अगर हम SOPs के साथ जिस तरह बाकी सारे अदारे खोल दिए गए हैं, थिएटर को सिनेमा को भी खोल दिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वजीर आला ये लोग जो होते हैं इनको आवाम का ख्याल रखना होता है। और यही तो वक्त था जहाँ हमें पता चलना था कि हमारे प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं, हमारा वजीर आज़म क्या कर रहा है, वजीर आला क्या कर रहा है। हमें तो सिर्फ ये पता चला कि इस डेंजरस सिचुएशन में सभी सरवर साहब काम कर रहे हैं। चलो मैं ये तो नहीं कहता कि SOPs का मामला है उस्मान बुज़दार साहब से छोड़ दें, कम से कम मैं ये रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ कि उस्मान बुज़दार साहब की जगह CM सभी सरवर साहब को लगा दिया जाए। मकसद तो इंसान की हमदर्दी है। वो बेचारे जहाँ जो गेटों पे थे, जो भी इतने काम करते थे, इतने वो कहाँ जाएंगे? सब कुछ खुल गया है सिवाय 6 चीज़ों। थिएटर बंद है, सिनेमा बंद है, शादी हॉल्स बंद हैं, बड़े बड़े मॉल्स बंद हैं, छोटे मॉल खुले हुए हैं। आप सिर्फ बरेली स्टोर पे जाकर देख लें, 400-450-500 लोग होते हैं। हमारे यहाँ तो इतनी तादाद होती नहीं। भारत आपकी बड़ी मेहरबानी होगी हुकूमत पाकिस्तान से कि हमसे ज़्यादा SOPs का कोई ख्याल नहीं रख सकता। यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं और इस वक्त लाहौर के अंदर खास तौर पर जितने भी थिएटर हैं सारे के सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हैं। हमारे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। मैं तमाम मीडिया का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारी कॉल पर आए, क्योंकि मीडिया और फनकार का चोरी नामों का साथ है। आपकी बड़ी मेहरबानी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से कि थिएटर को खोलना चाहिए, क्योंकि टीवी पे मैंने देखा जब से हम भी लॉकडाउन में हैं, पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है, लेकिन टीवी पे मजदूर की बात हुई, ताजरान की बात हुई और बातें हुई, कभी किसी ने फनकार की बात हुई। ये भी इनको करनी चाहिए, क्योंकि ये 22 करोड़ आवाम के चेहरों पे मुस्कुराते थे। तो जो भी हुकूमत आती हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम फनकार हैं, हम किसी सियासतदान को कुछ नहीं कहना चाहते,
क्योंकि कोई भी जितनी देर से भी मतलब हुकूमतें आती रही हैं, फनकार के लिए किसी ने अच्छा नहीं सोचा, ये खुद ही अपने पाँव पे चल रहे। अगर 18 फनकार स्टेज के सामने हैं तो 22 पीछे भी हैं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन उनको हम जानते हैं। पर भी हम टैक्स देते हैं, जो भी शो खत्म नहीं होता तो 12:30 बजे गवर्नमेंट की जेब में चले जाता है। अगर आप 50 सालों का हिसाब लगाएं तो पूरे पंजाब में कितने थिएटर हैं और कितना अरबों रुपया इन्हीं फनकारों ने जो है इकट्ठा करके दिया। बहुत अच्छी आपने बात की है कि कौमी असेंबली के जो इजलास होते हैं वहाँ पर भी तो इतनी ही गैदरिंग होती है और वहाँ पर भी इतना ही बात करता है जितना हमारे स्टेट में होता है। वहाँ पर भी इतनी ही मजाक की बात की जाती है। और स्पेशली थैंक्स करते हैं सरवर भट्ट साहब का, क्योंकि उन्होंने स्पेशली लाल चौधरी साहब को भूलने वालों में भेजा और जो हमारे जूनियर आर्टिस्ट है उनकी हौसला है। जी सजेस्ट नहीं करना, हम सिर्फ इतना ही हक मांग रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर पे थिएटर खोल दें, बस इतना ही काफ़ी है। हमें जैसे भी करना है, कैसे करना है, हम जाने, हमारा अल्लाह जाने, हमारे काम में रुकावट ना आए। नहीं मांग रहे आपसे, आपने कोई ऐलान किया है, आपके पास नहीं है, आप ना दें। तो बाकी जो हम खबरें सुन रहे हैं कि फ़नकारों के लिए ये ऐलान हो गया, अभी तक तो किसी के पास नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा जी कि 90 करोड़ 90 अरब बांट दिया गया। इस हिसाब से अगर हिसाब लगाया जाए तो हर पाकिस्तानी के हिस्से में तकरीबन कोई 30,000 रुपया आता है। सर फैसलाबाद का एक डायरेक्टर है ज़ीशान अली, वो अपनी हर वीडियो में आपका नाम लेते हैं, तो आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, उनको कोई तसल्ली तो दें? मैं उसको यही कहूँगा कि मेरा नाम लेने के बजाय अल्लाह का नाम लो ताकि तुम्हारे अल्लाह ठीक हो जाए। थैंक यू वेरी मच। इस तरह छोटे बहन भाइयों का राइट होता है कि बड़े जो भाई सेटल होते हैं उन पर नज़र होती है, बिल्कुल उसी तरह फैसलाबाद को जो आर्टिस्ट है इस वक्त उनकी फुल टाइम जो नज़र है वो, चूँकि आप माशाल्लाह सुपरस्टार हैं, तो अभी आपने कुछ दिन पहले वीडियो वायरल देखी, वो डायरेक्टर है ज़ीशान अली, उन्होंने डंडे की रेडियाँ लगाई हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? फैसलाबाद को बड़ी उम्मीदें हैं उनके आर्टिस्टों को आपके लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ फैसलाबाद की बात नहीं कर रहा, मैं इस फील्ड से मुंसलिक हर उस बंदे की बात कर रहा हूँ, चाहे वो नॉर्वे में जाके काम कर रहा है, चाहे वो शदरे में काम कर रहा है, चाहे जड़ावाला में कर रहा है, चाहे मुल्तान में कर रहा है, या पाकिस्तान की किसी भी कोने या नुक्कड़ में कर रहा है। मैं हर उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त बहुत डैमेज हो चुका है, जो बहुत ज़्यादा कसम पुरसी की लाइफ गुजार रहा है, जो दूसरों के हाथों की तरफ देख रहा है, जिसके बच्चे अपने बाप की तरफ देख रहे हैं, जो एक हीरो की ज़िंदगी गुजार रहा था, जो अपने घर में जाता था तो एक्टर बन के एंटर होता था। उसके बच्चे समझते थे कि हमारे पापा जो हैं वो एक्टर हैं, हमारे पापा को लोग देख के तालियां बजाते हैं, हमारे पापा जो है वो स्पेशल हैं। हर बच्चे का बाप उसका सुपरमैन होता है, स्पाइडरमैन होता है। तो जो फनकार होता है जब अपने घर में जाता है, इसका जो मैनरिज्म होता है वो दूसरे लोगों से थोड़ा अलग होता है, ये अपने बच्चों को कुछ और तरह से रखता है। जब उन बच्चों की सोच ख़राब होगी कि यही हमारा बाप जो कल हीरो बन के फिर रहा था आज मांगने पे मजबूर हो गया है, हाथ फैलाने पे मजबूर हो गया है, ये हमें कह रहा है कि खाने के लिए कुछ नहीं है, ईद आ रही है पहनने के लिए कुछ नहीं है, उन बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी? उस बच्चे के हीरो का क्या हाल होगा जब वो हीरो डैमेज होगा? एक स्पाइडरमैन, एक सुपरमैन जब बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, तो जब किसी बंदे की नफ़ी हो जाती है, जब बंदे की किसी की तज़हीक हो जाती है, कहीं भी इज़्ज़त चली जाए, कहीं भी बेइज्जती हो जाए, इंसान बर्दाश्त कर लेता है। किसी बच्चे के सामने उसके बाप की बेइज्जती हो जाए वो बर्दाश्त नहीं होती।